redox reactions, there is one important topic that is called as oxidation number. Oxidation number or oxidation state. It is one and the same thing, just the other name. Oxidation state. Let's see the definition for oxidation number or oxidation state. It is an arbitrary charge assigned to an atom of an element. Correct? Arbitrary मतलब imaginary charge है ना? It is basically the electric charge which is assigned. It can be positive or negative. Let's say we have O minus 2. So this is the oxidation number or oxidation state of oxygen. We can have Cl minus. है ना? The oxidation state is minus means minus 1. We can have Na plus here. We can have Mg plus 2 like that. We have Al plus 3. All these numbers which I am writing here. Now these are the charges, positive or negative, assigned to an atom of an element. That is the definition of oxidation number. Now we can have a complex cation or anion, like we have, let's say, permanganate ion. So in this, the oxidation number of Mn is plus 7. Right? Suppose if I have something like this, NH4 plus, it's a complex cation. Here the oxidation number of nitrogen, it is going to be minus 3, right? Or even I can have a molecule like this T2Cr2O7. Here chromium is going to be plus 6. All these are oxidation numbers. From where we get all these numbers? There are some rules given by IUPAC to assign these oxidation numbers. I'll teach you all those rules with their exceptions one by one, and examples and exception now. Okay, let's see the rules to assign oxidation number. Oxidation number. Okay. Henceforth मैं oxidation number का short form लिखूंगा ऐसे ON, right? First rule: the oxidation number of hydrogen is always plus 1 except for metal hydrides, where it is minus 1. Generally it is always plus 1, but here it is minus 1 in metal hydrides. मेटल हाइड्राइड का एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से सोडियम हाइड्राइड. I can write the formula as Na2H2, ऐसे ही सिंपल NaH भी लिखते हैं. तो इसमें सोडियम प्लस 1 आएगा, हाइड्रोजन माइनस 1 आएगा, which is exception, है ना? ये it is behaving like halides now. करेक्ट ना? ऐसा हाइड्रोजन क्यों कर सकता है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज आल्सो 1. करेक्ट ना? तो ये एक इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा, करेक्ट ना, दिस इज गेन, तो क्या बनेगा? हाइड्राइड बनेगा कि नहीं? राइट? जैसे Cl माइनस क्या होता है? क्लोराइड. Br माइनस क्या होता है? ब्रोमाइड. I माइनस क्या होता है? आयोडाइड. तो ये क्या हो गया? हाइड्राइड. करेक्ट ना? एक इलेक्ट्रॉन उसने शेयर कर दिया, तभी भी वो बैलेंस हो सकता है, स्टेबल हो सकता है. करेक्ट ना? शेयर करके, या तो फिर लॉस कर सकता है. एक ही इलेक्ट्रॉन उसके पास होता है, उसका लॉस मतलब ऑक्सीडेशन कर दिया. करेक्ट ना? तो वो H प्लस बनेगा ऐसे. नाउ इट इज बिहेविंग एज व्हाट? सोडियम, पोटेशियम, उसके जैसा बिहेव. करेक्ट ना? तो जनरली तो ऐसे ही होता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन सिर्फ मेटल हाइड्राइड्स में माइनस 1 होता है. दिस इज द एक्सेप्शन. Let us see the second rule to assign oxidation number. The oxidation number of oxygen is always -2 except
for peroxides where it is -1, राइट। हम लोग जनरली कोई भी एग्जांपल लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन जो होता है वो माइनस होता है। एक्सेप्शन का एग्जांपल देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला वैसे तो H2O2 है, जिसमें ईच ऑक्सीजन इज -1, ऐसे, दैट इज द एक्सेप्शन, है ना। मतलब इसका स्ट्रक्चर ऐसे, ऑक्सीजन है ना चेन फॉर्म कर सकता है, छोटा सा ही, सल्फर और ऑक्सीजन दोनों कर सकते हैं। कार्बन के अलावा ये दो ही एलिमेंट्स है ना, लेकिन छोटा। कार्बन तो बहुत बड़ा चेन करता है। यहाँ पे एवरी ऑक्सीजन इज -1, समझ में आता है? इट इज लाइक दैट। ये टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना, ये मॉलिक्यूल है, तो इसके ऊपर चार्ज नहीं, क्यों 0 है? क्योंकि ये +1 है ना, रूल नंबर 1 के हिसाब से ये +1, तो टोटल 0 हुआ कि नहीं? तो H2O2 का मॉलिक्यूल चार्जलेस होने का रीजन ऐसा है कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव। ये तभी हो सकता है जब ये दोनों -1 है, करेक्ट। तो ईच ऑक्सीजन इन दिस इज -1, जैसे मैंने देखा है। ये ऑक्सीजन लिंकेज जहाँ पे आता है ना, वहां पे जनरली पेरोक्साइड ऐसे आता है। लेट्स से वी हैव बेरियम पेरोक्साइड, so what should be the formula? It is BaO2, and इसमें भी ऑक्सीजन -1 आएगा, सी ऐसे आएगा, ये ऑक्सीजन लिंकेज ये होगा, एंड दिस इज -1 जबकि ये +2 है ना। दिस इज नॉट द सेम एज BaO, ये बेरियम ऑक्साइड है, करेक्ट ना। वेयर ऑक्सीजन इज -1, दिस इज +2। आर यू गेटिंग इट? दीज टू थिंग्स आर नॉट सेम। ये बेरियम ऑक्साइड, ये बेरियम पेरोक्साइड। वैसे ही एक एक्सेप्शनल ये है क्रोमियम पेरोक्साइड। पेरोक्साइड, इसका तो और एक नाम है, क्रोमियम ऑक्साइड पेरोक्साइड, ऐसा भी है। इसका फॉर्मूला है CrO5, ऐसे, है ना। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर आता है इसका। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, ये ऊपर है, ये ऑक्साइड आएगा, और बाकी 4 ऑक्सीजन इस तरफ आएंगे, ये तो ये हो गया बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। इसमें ये ऑक्सीजन लिंकेज वाले चारों -1 है, करेक्ट ना, और ये -2 है। तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो गया इसमें? टोटल नेगेटिव चार्ज है ना, इट इज -4 और ये -2, तो -6 हो गया। तो क्रोमियम इसके लिए +6 आता है ना। वो कैसे आता है मैं बताता हूँ। जैसे मैंने कहा कि इसका टोटल चार्ज 0 होना चाहिए, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव होना चाहिए, तभी बैलेंस है। तो ऑक्सीजन तो ये -4 -2 मतलब -6 हो गया, तो क्रोमियम हैज टू बी +6। ऑक्सीजन के एक्सेप्शन में और एक कंपाउंड आता है, दैट इज OF2, ऐसे, ऑक्सीजन डाइक्लोराइड। इसमें फ्लोरीन -1 है, इसकी वजह से ऑक्सीजन +2 दिखाता है, राइट ना। तो एक ऑक्सीजन का और एक एक्सेप्शन हो गया। फ्लोरीन हमेशा नेगेटिव होता है, -1, वो भी वन ऑफ द रूल्स है, आगे जाके रिपीट होगा, लेकिन यहाँ पे भी बता रहा हूँ एक्सेप्शन ऑफ ऑक्सीजन में आएगा। जनरली ऑक्सीजन -2 होता है, पेरोक्साइड में -1। इस एक कंपाउंड में +2 भी दिखाता है फ्लोरीन की वजह से, करेक्ट, बिकॉज फ्लोरीन इज ऑलवेज -1, सो दैट इज द एक्सेप्शन। रूल नंबर 3 is the oxidation number of an element in its free state. फ्री स्टेट का ही मतलब होता है अनकम्बाइंड स्टेट। अनकम्बाइंड स्टेट इन a redox reaction is taken as 0. What do I mean by that? हम लोग कोई भी रिएक्शन लेते हैं, जैसे कंबशन ऑफ मीथेन, CH4 plus O2, that is going to give us CO2 plus H2O. I need to balance this reaction. कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया. Now oxygens, it should be balanced like this.
Now this oxygen here is in free state, so इसका oxidation state should be taken as 0. ऐसा है क्या? तो ये रिएक्शन लेते हैं. Let's say we have CuSO4 plus Zn, that gives us ZnSO4 plus Cu. Now यहाँ पे कॉपर कौन से स्टेट में? कंबाइंड स्टेट में, कंपाउंड फॉर्म में, जबकि यहाँ पे कॉपर क्या है? फ्री स्टेट में, अकेला है, अनकम्बाइंड. तो यहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा. ऐसे जिंक का ये उसका फ्री स्टेट है, अकेला है, तो ये 0 आएगा. यहाँ पे वो कंबाइंड स्टेट में, ये अनकम्बाइंड फ्री स्टेट है, तो 0 आता है. तो किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन में जब कोई एलिमेंट अकेला होता है फ्री स्टेट या अनकम्बाइंड स्टेट में, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बाय रूल 0 लेना चाहिए. रूल नंबर 4 to assign oxidation number, it says that the algebraic sum of the total oxidation numbers of all the elements in a molecule is equal to 0. I'll explain with the help of example. Let us say this is the molecule KMnO4, correct ना, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम इज ऑलवेज +1. ये भी एक रूल है, आगे जाके लूंगा. रूल नंबर में भी 6 पे हम लोग लेंगे, अभी तो 4th पे ही है. लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम इज ऑलवेज +1, ऑलवेज +1. वो रूल है, मैंने यूज किया है यहाँ पे, है ना. ये हमने यूज किया है. ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन इज -2, ऐसे 4 ऑक्सीजन है, करेक्ट. और इसका मालूम नहीं तो x ले लेते हैं, राइट. तो इसका जो टोटल है शुड बी टेकन एज 0. मॉलिक्यूल के अंदर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब बाय रूल जिनका फिक्स नहीं है उसका, बाय रूल ऑक्सीजन का सेकंड रूल -2 है, बाय रूल पोटेशियम इज ऑलवेज +1, तो Mn का मालूम नहीं, इसके लिए x लिया. और उसका अलजेब्राइक सम, जितना भी टोटल ऑक्सीडेशन नंबर है, शुड बी टेकन एज 0. तो अभी मैं सॉल्व करता हूं, तो ये क्या आएगा? 4 × -2 इज -8, है ना. यहाँ पे ये 1 है ना, प्लस ये ऐसा इज इक्वल टू 0. तो बेसिकली क्या हो गया? ये x - 7 इज इक्वल टू 0. तो x क्या हो गया? +7, करेक्ट ना. लेट अस से वी हैव अ कंपाउंड, लेट्स टेक पोटेशियम डाइक्रोमेट. अगेन पोटेशियम इज +1, क्रोमियम मालूम नहीं है, ऑक्सीजन इज -2, लेकिन ऐसे 7 है, क्रोमियम भी 2 है, तो 2x आएगा. और इसका सम शुड बी टेकन एज 0. सो दिस इज 2x, है ना. एंड ये कितना आ रहा है? 14. ऐसा पोटेशियम भी 2 है ना, तो 2 करना चाहिए. सो बेसिकली ये क्या हो गया? +2 + 2x - 14 इज इक्वल टू 0. सो 2x - 12 इज इक्वल टू 0. therefore 2x इज इक्वल टू +12. therefore x इज इक्वल टू +6. तो क्रोमियम इसमें क्या आ गया? इट इज +6. मतलब किसी भी मॉलिक्यूल में बाय रूल जिनका फिक्स है, ऑक्सीजन का -2 और पोटेशियम का +1, उसके अलावा जो बचा हुआ है किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है, उसको x लेना चाहिए. और ऑक्सीडेशन नंबर्स का टोटल शुड बी टेकन एज 0 इन अ मॉलिक्यूल. ऐसा ही रूल है. ओके, लेट्स सी HNO3. ये कंपाउंड का मॉलिक्यूल है, करेक्ट ना. मॉलिक्यूल देख रहे हैं ना हम लोग, जिसमें रूल नंबर 1 के हिसाब से इसका ऑक्सीडेशन नंबर इज +1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर इज -2, ऐसे 3 है. और इसका मालूम नहीं तो x ले लेते हैं. और इसका टोटल, द अलजेब्राइक सम ऑफ द टोटल ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट शुड बी टेकन एज 0 इन अ मॉलिक्यूल. सो दिस इज कमिंग आउट टू बी व्हाट? दिस इज -6. 1 - 6 is obviously -5 is equal to 0. So x comes out to be +5. राइट. या सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का देखते हैं, H2SO4. हाइड्रोजन क्या क्या है? +1, लेकिन ऐसे 2 हाइड्रोजन है. ऑक्सीजन का -2, ऐसे 4 है, करेक्ट ना. एंड सल्फर शुड बी टेकन एज x, ऐसा शुड बी इक्वेटेड विद 0. सो दिस इज 4 × -2 is -8, 2 - 8 is -6. So x - 6 is equal to 0. So x comes out to be +6. Okay, rule number 5. Let's see the rule number 5. The algebraic sum of the total oxidation number of all the elements in an iron. ये फर्क है. इसके पहले रूल जो था 4th, उसमें यहाँ पे मॉलिक्यूल था.
ion is equal to the net charge. मॉलिक्यूल में वो इक्वल टू 0 था, अब यहाँ पे इक्वल टू नेट चार्ज। मतलब क्या, मैं एग्जांपल से बताता हूँ। कोई आयन लेते हैं जैसे MnO4 माइनस, ये परमैंगनेट आयन जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है बाय रूल नंबर 2, ऐसे 4 ऑक्सीजन है, और Mn का मैं ले लेता हूँ x, है ना, शुड बी इक्वेटेड विद -1। ये जो माइनस है ना, -1 वो लिया है यहाँ पे। So this comes out to be x minus 8, which is -1. So x is equal to -1 plus 8, which comes out to be +7. So x is +7 here, right? Let's say we have perchromate ion CrO4 -2. तो इसमें क्रोमियम x ले लेंगे, ऑक्सीजन शुड बी -2, ऐसे 4 है, करेक्ट और नॉट? इसका टोटल मुझे लेना है, शुड बी इक्वल टू -2, ये लिया -2। समझ में आ रहा है? So that comes out to be x minus 8 is -2, so x is equal to -2 plus 8, which comes out to be +6. And let's say we have ammonium ion NH4 plus, here nitrogen and take x, hydrogen by rule is +1, like that we have 4 ऐसे, and the total should be equal to be +1, ये है ना +1, ये लिए। So what is it? X plus 4 is equal to +1. So what is x? X is equal to 1 minus 4, which is equal to -3. है ना? Let us say sulfate ion SO4 -2. तो ऑक्सीजन इज -2, राइट? ये ऐसे आएगा, ऑक्सीजन -2 हो जाएगा, और फिर ऐसे 4 ऑक्सीजन है, सल्फर इज x, है ना, शुड बी इक्वेटेड विद -2. So x minus 8 is -2. So x should be equal to -2 plus 8, which is equal to +6. Next, let us say we have PO4 -3. This is phosphate ion. So here oxidation state of phosphorus, let us say X, oxygen is -2, right? Like that we have 4, right? So, and this should be equated with -3. So this is X minus 8 is equal to -3. So X will be equal to -3 plus 8, है ना, इधर जाता तो चेंज होगा. So x will be equal to +5. Correct? Now let's say PO3 -3, phosphite ion. This is going to be, -2, like that we have 3. Phosphorus, let us say x is equal to -3, this one. So this is x minus 6 is -3. So x is equal to -3 plus 6. So x will be equal to +3. Let's say we have nitrate ion, NO3 minus. Nitrogen in here is x, oxygen is -2, should be equated with -1. So this is x minus 6 is equal to -1. So x is equal to -1 plus 6, that makes it +5. Let's see rule number 6 here. The oxidation number of potassium and sodium is always +1. इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, कहीं पे भी किसी भी कंपाउंड में, जैसे मैंने बताया था कि MnO4, इसमें ये हमेशा +1 ही आएगा, है ना, कभी 0 +2 नहीं होता, नेगेटिव का तो सवाल ही नहीं है, करेक्ट ना? इसमें -2, ये +1 क्यों लिया? क्योंकि ये रूल है, करेक्ट ना? और इसमें Mn का लेके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट नॉट? ये 4 टाइम्स है, फिर एडिशन करके इक्वल टू 0 आता है। फिर यहाँ सोडियम का कोई एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, जैसे वी हैव सोडियम क्लोराइड, तो ये +1 है तो ये -1 है, और ये हमेशा +1 ही रहेगा. सोडियम एंड पोटेशियम इज ऑलवेज +1. देन कम्स रूल नंबर 7, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन is always -1. फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना, ऑलमोस्ट 4 के जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है पूरे पीरियोडिक टेबल में, सबसे बड़ा विलन है, तो सामने वाले का इलेक्ट्रॉन से छीनना ही जानता है, करेक्ट ना? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स व्हाट? इट इज अ टेंडेंसी to snatch, literally to grab the electron of an element
इन अ कोवेलेंट कंपाउंड, है ना, तो फ्लोरीन जो है उसका एटॉमिक नंबर इज 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 27। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको डेस्परेटली एक इलेक्ट्रॉन लगता है, इसके लिए वो एक इलेक्ट्रॉन लेता है। सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऐसा -1, है ना। इसके लिए मैंने कहा था कि OF2 में ये जो बताया था, है ना, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन भी सामने वाले का इलेक्ट्रॉन छीनने के लिए फेमस है, लेकिन फ्लोरीन उसमें उसका बाप है, तो वो ऑक्सीजन को भी छोड़ता नहीं है। यहाँ पे ये फ्लोरीन -1 दिखाएगा, दिस इज 2, तो ऑक्सीजन क्या लेंगे, सपोज x इज इक्वल टू 0। आप सॉल्व करके देखो, करेक्ट ना, x क्या आता है +2, तो इसमें ऑक्सीजन इज +2 क्योंकि ये -1 है। सिर्फ एक ऐसा कंपाउंड है ना, एक्सेप्शनल, याद रखना, हाइपोफ्लोरस एसिड। हाइपोफ्लोरस एसिड इज HOF, करेक्ट ना। इसमें फ्लोरीन जो है वो -1 है ना। हाइड्रोजन आएगा +1, ऑक्सीजन आएगा -2, करेक्ट ना। तो ये क्या हो जाएगा फिर, +1 -2, और ये x इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। सो 1 - 2 इज -1 प्लस x इज इक्वल टू 0, तो x क्या हो गया, +1। दिस इज द ओनली एक्सेप्शनल एसिड, है ना, राइट, हाइपोफ्लोरस एसिड, जिसमें फ्लोरीन शोज व्हाट, ऑक्सीडेशन स्टेट एज +1। अदर देन दैट फ्लोरीन विल ऑलवेज शो -1। इसके अलावा कुछ 2-4 और एक्सेप्शनल एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में हो सकता है क्या, यस, यस इज द आंसर। लेट्स से एक कंपाउंड ले लेते हैं, उसको कहते हैं रेड लेड, करेक्ट, जिसका फॉर्मूला है Pb3O4, करेक्ट ना। सो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इज -2, लाइक दैट वी हैव 4। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Pb, लेट्स फाइंड आउट। x ऐसे 3 है तो 3x आएगा। टोटल ऑफ दिस शुड बी इक्वल टू 0 क्योंकि ये मॉलिक्यूल है। रूल नंबर 4 जो मैंने आपको बताया, दैट इज द टोटल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट शुड बी इक्वेटेड विद 0 इन अ मॉलिक्यूल। सो इफ आई मे सॉल्व दिस इज गोइंग टू बी 3x - 8 इज इक्वल टू 0। So 3x is going to be +8. So what is x? It is +8/3. तो आया ना फ्रैक्शन में, it is possible। है ना। एक आयन लेते हैं, that is टेट्राथायोनेट आयन, it is टेट्राथायोनेट आयन, है ना। ये थोड़ा एक्सेप्शनल है, क्यों मैं बताता हूँ, है ना। टेट्रा मतलब 4, तो ये S4O6-2 ऐसे आता है, कॉम्प्लेक्स आयन, है ना, जिसमें इसी मेथड से अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, जिसमें सल्फर x ले लेंगे, ऐसे 4 सल्फर है, ऑक्सीजन बाय रूल -2 और 6 इज इक्वल टू -2 नेट चार्ज, करेक्ट ना। आयन में नेट चार्ज लिया जाता है। सो दिस इज 4x, -12 इज -2, सो व्हाट इज 4x, ये -12 हो जाके प्लस हो जाएगा, -2 + 12 इज एक्चुअली +10, तो 4x मतलब x क्या हो गया, इट हैज टू बी 10/4, मतलब क्या हो गया, 10/4 मतलब 2.5 आता है। सो व्हाट इज सो एक्सेप्शनल अबाउट दिस, मैं अगर इसका स्ट्रक्चर निकालता हूं ना तो थोड़ा अलग हो जाएगा। स्ट्रक्चर में सल्फर का लिंकेज आता है ऐसे, करेक्ट, और 6 ऑक्सीजन यहाँ पे आएंगे ऐसे, लाइक दिस, ये माइनस चार्ज। इफ यू सी, एंड हाउ मेनी ऑक्सीजन डू वी हैव हियर, 1 2 3 4 5 6, इट इज परफेक्ट, करेक्ट ना। S4O6-2 ऐसा आता है जिसमें ये सल्फर +5 है, ये +5 है। आर यू गेटिंग दिस, ये 0 लेना है, लिंकेज वाला जो है वो 0 लेना है। दिस ऑल आर -2, करेक्ट ना, -2, ये -2, ये -2, करेक्ट ना, और ये माइनस और ये माइनस ऐसे, तो टोटल नेगेटिव चार्ज -10, टोटल पॉजिटिव चार्ज +10 आया, मतलब चार्ज जो है, करेक्ट ना, बैलेंस। ये ऑब्वियसली -2, ये -2 होगा कि नहीं, ऐसे, जिसमें से एक इधर दिया गया, तो चार्ज इज बैलेंस, इट इज परफेक्ट, है ना। यहाँ पे -2 एक्स्ट्रा आता है कि नहीं, है ना। जहाँ पे अगर मैं सोडियम ले लूँ Na2 ऐसे, तो परफेक्टली बैलेंस हो जाएगा। सी, सोडियम अगर लेता हूँ Na2S4, तो ये सोडियम टेट्राथायोनेट अभी मॉलिक्यूल हो गया ऐसे। आर यू गेटिंग इट अराउंड, है ना। तो लेकिन अभी यहाँ पे कोई नहीं है, इसके लिए हम लोग -1 ले रहे हैं ऐसे, तभी चार्ज बैलेंस होगा। सो यहाँ पे ये याद रखना, करेक्ट ना, ये एक्सेप्शन है, ये स्ट्रक्चर के हिसाब से +5 आता है स्ट्रक्चर में, लेकिन ऐसे निकालेंगे तो +2.5, और एग्जाम में +2.5 ही लेना है। Okay, let's say we have copper sulfate, and the question is, what is the oxidation number of copper in copper sulfate? अभी बाय रूल ऑक्सीजन का -2 है ना, सल्फर का भी हमें मालूम नहीं है,
करेक्ट ना। तो जिनको कैटायंस अनायंस होता है उनके लिए तो ये बहुत इजी है। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला ऐसा क्यों है, इसमें सल्फेट अनायन है जो -2 है, तो कॉपर क्या रहेगा, क्यूप्रिक फॉर्म में ही रहेगा। दोनों के सिर पे सेम चार्ज है ना, तो चार्ज का उठाओ, सिंबल को जोड़ो तभी तो ऐसा आएगा। तो सल्फेट -2 है मतलब कॉपर +2 ही होना चाहिए, तो मेरा आंसर तो आ गया। लेकिन रेडॉक्स रिएक्शन के चैप्टर के हिसाब से अगर करना है तो पहले आपको सल्फेट को अलग करना है, करेक्ट ना। सल्फेट अलग लिख दिया ये, लेकिन ये भी तो बाय हार्ट ही होना चाहिए कि सल्फेट -2 होता है, जिसमें ऑक्सीजन इज -2, लाइक दैट वी हैव 4 ऑक्सीजन, और सल्फर को X लेंगे, इट शुड बी इक्वेटेड विद -2। तो फिर ये क्या होगा, X -8 इज इक्वल टू -2, सो X विल बी इक्वल टू व्हाट, +6। तो पूरे कॉपर सल्फेट में है ना, सल्फर कितना हो गया, +6, ऑक्सीजन कितना है, -2, लाइक दैट वी हैव 4, एंड नाउ दिस इफ यू कंसिडर एज X शुड बी इक्वेटेड विद 0। सो ये क्या आ रहा है, X, ये हो गया -6, 6 -8 मतलब हो गया -2 इज इक्वल टू 0, तो X क्या हो गया, +2, राइट। ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट में पहले सल्फेट को अलग कर दिया, जिसमें सल्फर निकाला +6, फिर उसको सब्स्टिट्यूट किया, ये +6 और ये -2, इसको X लेके सॉल्व किया। Let us calculate the oxidation number of bismuth in bismuth oxynitrate, है ना, इसका नाम है बिस्मथ ऑक्सीनाइट्रेट, जिसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए पहले नाइट्रेट को अलग करना पड़ेगा। यू नो व्हाट इज नाइट्रेट, नाइट्रेट इज NO3-, ये बाय हार्ट ही होना चाहिए, जिसमें नाइट्रोजन X मान लेते हैं, ऑक्सीजन -2, ऐसे 3 ऑक्सीजन है, इसका टोटल शुड बी इक्वेटेड विद -1, ये -1 है इसके। तो X -6 इज -1, -6 उधर जाके +6 होगा, करेक्ट ना। तो व्हाट इज X, इट इज +5। अभी इसको इधर यूज करते हैं, है ना। बिस्मथ इज X, दिस ऑक्सीजन इज -2, नाइट्रोजन हमने निकाला है +5, दिस ऑक्सीजन अगेन इज -2 into 3, इन सभी का टोटल करते हैं। So and it should be equated with 0. So X, this is -2 + 5 - 6 is equal to 0. So this is going to be X -3 is equal to 0. ये पूरा -3 आएगा। So what is X? It is equal to +3. ये बिस्मथ का ऑक्सीडेशन स्टेट है बिस्मथ ऑक्सीनाइट्रेट में। क्या किया समझा, बिस्मथ ऑक्सीनाइट्रेट में से नाइट्रेट को पहले अलग करके नाइट्रोजन का निकाल लिया +5, फिर उधर सब्स्टिट्यूट करके बिस्मथ का निकाला। Let's see one more exception compound. Let's say it is bleaching powder. That is a famous name, and the formula is CaOCl2. So what is so exceptional about it? है ना, इसका स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। CaOCl2 कैसे आएगा, एक क्लोरीन डायरेक्टली अटैच होगा, एक क्लोरीन ऑक्सीजन को अटैच होगा, ऐसा CaOCl2, करेक्ट। तो जो क्लोरीन डायरेक्टली अटैच्ड है यहाँ पे, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा, है ना, इट्स गोइंग टू बी -1, राइट ना। कैल्शियम तो +2 है, राइट, और ये +1 होगा। सो -1 + 1 0 हो गया, ये ऑक्सीजन जो है वो -2 है, +2 -2 0, +1 ये +1 -1 भी 0 हो गया, करेक्ट है ना। तो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आने का ये रीजन है। यहाँ पे क्लोरीन वैसे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ कनेक्टेड है तो इसका इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये ऑक्सीजन क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, इसके लिए इसके ऊपर +1 दिखाना है, करेक्ट ना। तो एक ही कंपाउंड में क्लोरीन के 2 अलग ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकते हैं। दिस इज हाउ यू शुड नो इट। So in today's lecture we saw the rules to assign oxidation number, obviously with the definition of oxidation number. इसमें कई सारे एक्सेप्शंस एंट्रेंस के हिसाब से आएंगे जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं कवर करूंगा। आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।